indiscriminately with both men and animals
tam, him, Amruta in the next life, Nirye in the hell, Vartamana existing, Vrajakantaka, Shalmalai, a silk cotton tree with thorns like thunderbolts, Aropya, mounting him on, Nishkarshanti, they pull him out. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: a person who indulges in sex indiscriminately, even with animals, is taken after death to the hell known as Vajrakantaka Shalmalai. In this hell, there is a silk cotton tree full of thorns as strong as thunderbolts. The agents of Yamaraj hang the sinful man on that tree and pull him down forcibly so that the thorns very severely tear his body. Purport: the sexual urge is so strong that sometimes a man indulges in sexual relation with a cow, or a woman indulges in sex relationship with a dog. Such man and woman are put into the hell known as Vajrakantaka Shalmalai. The Krishna conscious movement forbids illicit sex. From the description of this verse, we can understand what an extreme sinful act illicit sex is. Sometimes people disbelieve these descriptions of hell, but whether one believes or not, everything must be carried out by the laws of nature, which no one can avoid. Om Jnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvikam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Radhika Sri Vishakandikanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Vise Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshadharini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone follows Hindi song. Okay. तो आज के श्लोक भी यही कंटिन्यूएशन है। नरक लोग अलग अलग प्रकार के नरकों के बारे में हम वर्णन सुन रहे हैं अध्याय से। So कल हमने सुना है कि जो ब्राह्मण से लूटते हैं, ब्राह्मण से सोना या हीरा, उनका संपत्ति लूटने वाले लुटेरे को किस प्रकार का दंड दिया जाता है। ऐसा उसको शरीर को काटते हैं। तो इसी प्रकार वो सिमिलर पनिशमेंट है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो
साधारण रूप से मनुष्य और जानवर में किस प्रकार का अंतर है, एक शास्त्र में एक श्लोक में वर्णन करते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हितेषु अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिर्समान। आहार निद्रा, आहार स्वीकार करना और निद्रा अवस्था में रहना, ये सामान्य रूप, ये सामान्य स्तर पे जंतु और मनुष्य का एक ही कार्य है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम आहार लेते हैं, अगर आदमी बहुत अमीर है तो अच्छा पकवान बना के एक सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग टेबल में वो बैठ के खाते हैं, और जानवर जो है वो जो भी मिलता है उनको, वो रास्ते पे जो भी मिल जाता है वो खाता है, लेकिन खाने का प्रक्रिया एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। सभी लोग इस भौतिक संसार में आए हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य में निमग्न हैं, तो हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य यही है कि सुख का प्राप्त करना। कैसे हम सुखी हो सकते हैं? जब हम कोई व्यक्ति को प्रश्न करेंगे, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, रात देर से लौटते हैं, क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं? तो आदमी इस प्रकार का उत्तर देता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम बच्चे परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, आनंद से जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन ये परिश्रम जो है, केवल शरीर का पालन पोषण के लिए ही परिश्रम करना और आर्थिक और पारमार्थिक मतलब भगवान का प्राप्ति करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना, तो आत्म संतुष्टि के लिए प्रयास आत्मा का जो कार्य है आध्यात्मिक कार्य है, तो उस कार्य में नहीं निमग्न होने के कारण आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि कल हमने चर्चा किया विकर्म और अकर्म कार्य में, तो अकर्म कार्य जो है भगवान का संतुष्टि के लिए ही किया गया कार्य है, और उस प्रकार का कार्य आदमी जब नहीं करता है तो हमेशा वो दुखी रहता है। उसके पास कितना भी संपत्ति होने दीजिए, कितना भी धन होने दीजिए, कितना भी सोसाइटी में बड़ा नाम भी होने दीजिए और कितना भी सुंदर भी होने दीजिए, लेकिन भगवान का कार्य अगर नहीं करेगा तो जीवन में कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ मतलब यज्ञो वै विष्णु, विष्णु का संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं यज्ञ। तो यज्ञार्थ मतलब यज्ञ के अलावा और दूसरा कार्य जो भी करेंगे भगवान विष्णु का संतुष्टि के अलावा और दूसरा अन्य कार्य में निमग्न होंगे, तो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, इसमें वो कर्म में बंध जाते हैं, कर्म बंधन। ही विल बी बॉन्डेड इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, बद्धावस्था में रह जाता है आदमी। तो जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भौतिक संसार से भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको भगवान संतुष्टि का कार्य हमेशा करना चाहिए। तो ये आहार निद्रा भय मैथुनं च, आहार लेना, निद्रा सोना, अपने आप को संरक्षण करना, मैथुन सुख, ये सेक्स लाइफ जो है, ये सामान्य वेतन पशुभिर्नराणां, ये पशु भी करता है और नर मनुष्य भी करता है। इसमें कोई विशेष नहीं है, इसमें कोई बहुत स्पेशल नहीं है, इसमें कोई सामान्य वेतन, ये सामान्य स्तर पे किया गया कार्य है। लेकिन धर्मो हितेषु अधिको विशेष, धर्मो हितेषु अधिको विशेष, धर्म कार्य जो करते हैं वो प्रत्येक रूप से बहुत विशेष कार्य है।
और धर्म कार्य करने का जो अवसर मिलता है ये 84 लाख योनि में केवल मनुष्य को ही प्राप्त करता है। अगर हम बोलेंगे कि कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर को बुलाएंगे और बोलेंगे भागवत पढ़ो या जप करो या कुछ भी करो तो करना ही पाते हैं। मनुष्य के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है धर्म का आचरण करना। अगर धर्म का आचरण नहीं करेगा मनुष्य धर्मेण हीना पशुभिर समान, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो पशु का समान है। हालांकि वो आदमी को 2 पैर है, 2 हाथ है और मनुष्य का रूप है, लेकिन विपाक पशु है, 2 पैर वाला पशु है। ये शास्त्र में इस प्रकार का कठोर वाक्य उपयोग किया गया है। तो अगर पशु से भी आदमी गिर जाता है, पशु के स्तर से भी गिर जाता है, आदमी कितना भी, मनुष्य कितना भी गिर सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो वो पशु का स्तर से भी जब नीचे गिर जाएगा तो इस प्रकार का कार्य करेगा। तो आज का श्लोक में वही बता रहे हैं, ए पर्सन हु इंडल्जेस इन सेक्स indiscriminately even with animals, पशु भी वो कार्य नहीं करते। जैसे मनुष्य के प्रति ही आकर्षित होते हैं, वैसा एक स्त्री पुरुष का आकर्षण ऐसा है पशु। लेकिन एक मनुष्य पशु से भी नीचे स्तर पे गिर के एक घोर कलयुग का प्रभाव है। वो जानवर से संभोग करने का जो कार्य में निमग्न होता है उसको इधर बताया गया है। किस प्रकार का नर्क है, वज्र कंठ का सलमलई, इस प्रकार का नर्क प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के नरकों के बारे में ये वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि ये दंड जो है इतना कठोर है, अगर इसको सुनेंगे भी कि इसको श्रवण करेंगे भी तो शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसा नहीं कि भक्ति पारवश्य से रोमांचित होता है, लेकिन डर से रोमांच भय उत्पन्न होता है। इतना भयंकर दंड, जैसे इधर बता रहे हैं कि एक जो पेड़ है, जो कपूस कॉटन वृक्ष है, उसका जो थॉर्न्स, क्या बोलते हैं हिंदी में थॉर्न्स, थॉर्न मतलब वो थंडरबोल्ट जैसा, माने बहुत शक्तिशाली है। और उसके ऊपर इस आदमी को लटकाते हैं और ऊपर नीचे करते हैं तो पूरा शरीर को चीर देता है, चीरता है पूरा शरीर को। हम कल भी चर्चा किए हैं कि उस आदमी को यातना शरीर जो है, तो यातना शरीर प्राप्त होने के बाद उसको इस प्रकार का यातना दंड देते हैं। तो शरीर चीरते हुए जाते हैं और रोता है। उसका जितने भी पाप कार्य किया है उसका महसूस होता है उनको, वो हमने ये कार्य किया है, वो सब याद आता रहता है। और बहुत ही भयंकर प्रकार का दंड है। पुराना जमाना में जो राजा महाराजा थे वो भी इसी प्रकार का दंड देते थे, माने बहुत कठिन दंड। एक चोर होने दीजिए, राज्य में एक चोर हो, एक पापी हो, कोई भी होने दीजिए, उसको बहुत कठिन से उसको ऊपर लटका के बहुत दंड देते हैं। तो ये दंड देना किस लिए जरूरी है? जैसा चार वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में हम सुनते हैं। क्षत्रिय क्षत मतलब हिंसा द्वारा संरक्षण देने वाला जो है उसको बोलते हैं क्षत्रिय। क्षत्र मतलब हिंसा। तो ये हिंसा किस प्रकार उपयोग है? अगर कोई आदमी किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, खून कर दिया और उसको दंड नहीं मिला, वो सोचता है कि मैं
सबको पैसा है, मैं सबको खरीद सकता हूँ, पुलिस को भी खरीद सकता हूँ, लॉयर को भी खरीद सकता हूँ, और न्यायवादी और जज जो है उनको भी खरीद सकता हूँ पैसे से, और मैं आराम से बाहर घूम सकता हूँ, जितना भी प्राप्त करूँगा कोई मुझे पकड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इधर बच जाएगा नहीं, इधर किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, उसका ऑलरेडी फिक्सड है, क्योंकि द लॉस ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट। इधर प्रभुपाद जी आज का जो तात्पर्य बोल जाता है, आदमी उसको वो विश्वास करता है या नहीं करता है, तो उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन ये जो प्रकृति का नियम है उसके ऊपर ज़रूर लागू होता है। जैसे आदमी बोलेगा कि मैं ये ट्रैफिक का नियम जो है मैं पालन नहीं करूँगा, आई डोंट बिलीव इन ट्रैफिक रूल्स, तो गाड़ी चलाएगा तो फाइन आएगा, बिल आएगा। अभी तो ये सिस्टम ऐसे ही बना दिया कि पता भी नहीं चलता है, एक फ़ोटो खींचते हैं पुलिस वाला, ट्रैफिक फ़ोटो, और बाद में वो आता है फाइन भरने के लिए, वो जो रिसीट आ जाता है। वो बोलेगा, आदमी सोचेगा कि मुझे क्यों फाइन भरना है, मैं क्या पाप किया हूँ। अगर उनको महसूस भी नहीं है कि वो पाप कार्य में निमग्न है, फिर भी प्रकृति का जो नियम है वो हर एक के ऊपर दृष्टि रखती है। प्रकृति भौतिक प्रकृति जो भगवान उन्होंने बनाया है कि उनको वो शासन करने के भौतिक जगत में सबको नियंत्रण में रखने का उनका अधिकार है पूर्ण तरीका से। तो ये दंड का जो क्रिया है, इससे क्या है, आदमी का पाप का प्रक्षालन हो जाता है। अब जब वो पाप का प्रक्षालन हो जाता है, फिर वो उसको और नरक जाने के बाद और कम हो सकता है दंड। तो कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी बच नहीं सकता है। तो ये दंड जो है ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के दंड हम सुनेंगे तो मन में भय उत्पन्न होता है। भय रहना अच्छा है, क्योंकि पाप कार्य करने से इस प्रकार का नरक में जाना पड़ेगा, इस प्रकार का भय नहीं है तो वो पाप कार्य में पूर्ण तरीका से निमग्न होगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म में, सनातन संप्रदाय में बचपन से ही माँ और पिता बच्चों को नियंत्रण में रखते हुए वो इस प्रकार का शिक्षण देते हैं कि ये कार्य मत करो, ये कार्य करने से आपको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इस प्रकार उनको बचपन से ही नियंत्रण में रखते हैं। और कोई नियंत्रण नहीं चाहिए, नियंत्रण में रहना नहीं चाहते हैं, तो अपना मनमानी कर बैठते हैं। तो ये जो आज का जो श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, वो जानवर से भी गिरा हुआ कार्य है। अभी ये घोर कलयुग के बाद में ऐसा देखना पड़ता है कि एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को देख के उनको खाने का मन में वो इच्छा प्रकट होता है, क्योंकि आहार का बहुत आहार पदार्थ जो है कम हो जाता है, कलयुग में वो मिलता नहीं। और नरमांस भक्षक, मतलब एक आदमी को देख के वो सोचता है कि मैं इसको खा जाऊँ। इस प्रकार का ये घोर कली युग का अंत ऐसे ही होता है। तो ये श्लोक में आज बोल रहे कि ये मैथुन, ये संभोग क्रिया जो है, ये मैथुन सुख प्राप्ति करने का जो इच्छा है, माने जो अर्ज मतलब डिज़ायर, तो इतना वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत कठिन, बहुत बलिष्ठ प्रकार का माया का शक्तिशाली प्रभाव है। तो आदमी वो किसी स्तर पे, वो कितना भी नीचे स्तर पे जा सकता है। कभी महसूस भी, हम सोच भी नहीं सकता कि आदमी इतना गिर सकता है।
तो कृष्ण भावनामृत में जब आते हैं प्रभुपाद जी, हमको एक डिसिप्लिन इधर सिखाया गया कि हम एक अच्छा जीवन शैली में रहते हुए हम भक्ति में आगे बढ़े। तो प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य में बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑर्बिट्स E6X लाइफ। तो कामा, ये जब काम के वशीभूत होता है मनुष्य तो लज्जा छोड़ देता है। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। आज से हम दामोदर मास हमको शुरू होता है। दामोदर मास में भगवान श्री दामोदर भगवान नल और कुबेर जो है उनका उद्धारण करते हैं। वो गोकुल बंधन लीला में वो भगवान देखते हुए जाते हैं और ये जो दो वृक्ष के रूप धारण किए हुए हैं गंधर्व नल कुबेर, उनका उद्धारण करते हैं। तो नल कुबेर का क्यों इस प्रकार का दंड मिला है, क्या गलती किए हैं? वो तो कुबेर का पुत्र है, लेकिन निर्लज्ज होके वस्त्र पूरा छोड़ दिए हैं और नग्न अवस्था में थे। और वो भी किधर? शिवजी का जो उद्यानवन है, जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी भी गंगा के समान है। जब वही गंगा हमारा धरातल पे है उसको भागीरथी बोलते हैं। जब उद्वलोक में, जो स्वर्गलोक में अलकनंदा बोलते हैं। जब वही गंगा ये शिव जी का कैलाश में वो गए थे, उसको बोलते हैं मंदाकिनी। तो पुण्य तीर्थ है। तो पुण्य तीर्थ में स्नान करने का एक पद्धति है। ऐसा नहीं कि उसमें जाके जल क्रीड़ा करें, स्पोर्टिंग। यू शुड नॉट गो। प्रभुपाद जी उनको सतर्क करते हैं कि ऐसा पानी में पुण्य तीर्थ में जाके आप जस्ट ट्राई टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस बाय एंजॉयिंग। एक स्पोर्ट जैसा नहीं जाना है। पहले जब जाते हैं आचमन करना चाहिए, पानी सिर पे धारण करना है, फिर गंगा में उतर के श्रद्धा प्रपत्ति से गंगा का स्नान करना चाहिए। लेकिन ये मंदाकिनी में उतरे हैं और मदिरा से मदोन्मत्त होके ये क्या कर रहे हैं? नलकुबेर, मणिग्रीव और नलकुबेर, वो कोई स्पर्श नहीं, बाह्य स्पर्श नहीं, ऐसा जैसा लज्जा पूरा छोड़ दी और ऐसे ही स्नान कर। तो नारद मुनि आ रहे थे वही रास्ते में। तो जब नारद मुनि आ रहे थे, जो दूसरे गंधर्व कन्या स्त्री उन्होंने अपना शरीर को ढक लिया। लेकिन ये मदिरा सेवन करके मदोन्मत्त अवस्था में जो थे नलकुबेर और मणिग्रीव, तो ऐसे ही निर्लज्ज होके ऐसे ही खड़े हुए। तो नारद मुनि ने उनको शाप दिया। किस प्रकार का शाप है? अब वृक्ष बन जाओ। तो कल भी हम चर्चा किए हैं कि अलग अलग शरीर का योनि का प्राप्ति किस प्रकार होता है, उनका कार्य के अनुसार। तो जो व्यक्ति अपना शरीर को एक्सपोज करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होने दीजिए कोई भी, तो उसको वृक्ष की जैसा शरीर धारण करना पड़ता है। तो वृक्ष तो हम जानते हो कभी भी कपड़ा पहनते नहीं। वो धूप होने दीजिए या बारिश होने दीजिए या सर्दी के मौसम में हमेशा ऐसे रहते हैं पूरा। तो इस प्रकार उनको वृक्ष का रूप धारण करने का, वृक्ष बनने का शाप मिल गया। कौन? नलकुबेर और मणिग्रीव। तो वृक्ष बन गए। लेकिन ये शाप भी वर के समान है। किस प्रकार का वर है? कभी कभी साधु संत महात्मा जब शाप भी देते हैं उनको सुधारने के लिए और उनका फायदा के लिए। अभी भी हम सुन रहे थे, जब क्षत्रिय है, क्षत्र मतलब हिंसा के द्वारा संरक्षण करना, वही है क्षत्रिय। तो इसी प्रकार ये शाप भी वर के समान हो गए नलकुबेर और मणिग्रीव को। तो अर्जुन वृक्ष जैसे वृक्ष बन गए और नंद महाराज का घर के प्रांगण में वो वृक्ष बन गए। और यही मास में भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण गोकुल में जो उकल से बांध दिया यशोदा मैया,
तो कृष्ण आके वो दोनों वृक्ष का उदाहरण किए हैं। तो ये आवश्यकता है, दंड आवश्यकता है। आदमी में बदलाव लाना है तो दंड का क्रिया सामवेद दंडोपाय, दंड आवश्यकता है। सो ये प्रकृति का कार्य है, द लॉस ऑफ नेचर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो प्रकृति माँ दुर्गा है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसा है। वो हमेशा के भौतिक संसार में जो बद्धावस्था में पड़े हुए लोग हैं उनको दंड देती है। वो दंड भी किस प्रकार का है, 3 प्रकार का क्लेश देती है। 3 प्रकार का जो क्लेश है, जो कष्ट है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक क्लेश। तो आदि भौतिक क्लेश मतलब जो प्रकृति वैपरीत्य से उत्पन्न हुआ जो क्लेश है, आदि दैविक मतलब सुनामी आना, भूकंप आना। इस प्रकार जब देवता प्रसन्न नहीं होते हैं तो प्रकृति के माध्यम से जो उत्पन्न हुआ क्लेश है तो आदि दैविक है। आदि आत्मिक क्लेश मतलब हमारा शरीर से उत्पन्न हुआ जो कष्ट है, जो शायद जैसा उदाहरण के लिए रोग, शरीरम रोग मंदिरम, जो हमने भौतिक संसार में आए हैं और इस भौतिक शरीर का धारण हमने किया है, तो इस शरीर में अलग अलग प्रकार का कष्ट होता है। जब घुटनों के दर्द होता है, सब दर्द होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारी है। अब जितना भी आयुर्वेदिक औषध खाइए, जितना भी योगा कीजिए, कितना भी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन व्याधि तो आना जरूरी है। तो यही प्रकृति का नियम है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरों बाहर से कोई व्यक्ति हमको कोई बुरा कुछ बोल दिया या कुछ मन को कष्ट लगता है, निंदा किया किसी ने तो मन को कष्ट लगता है। ये सब जो है आदि भौतिक क्लेश। सो ये 3 जो क्लेश है, ये 3 प्रकार का क्लेश, एक त्रिविध तापत्रय, एक त्रिविध तापत्रय है, 3 प्रकार के कष्ट है। सो इससे बचने का एकमात्र उपाय है तापत्रयम उन्मूलनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविवीरीरितम कल्मशापः श्रवणमंगलम श्रीमताम ब्रुवि गृह्णन्ति भूरिदाजा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो जीव है इस प्रकार का जो तापत्रय में फंस गए थे भौतिक संसार में, इसमें बचना है तो गोपी गीत में गोपियाँ गाते हैं सुंदर श्लोक जो है, वो बोलते हैं कि आज दामोदर मास में दामोदर अष्टम के साथ गोपी गीत भी गाते हैं। यही स्टैंजा है, ये श्लोक है गोपी गीत से। तव कथामृतम, जो भगवान का जो कथामृत है वो अमृत की समान है, क्योंकि जो हमारा कर्ण के रंग से वो कथामृत का धारा जो प्रवेश करता है हमारा हृदय में, तो हृदय में परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? हृदय अंतस्वी अभद्राणी, हृदय में जितने भी अभद्र है, कल्मश है, वो नष्ट हो जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, और कवि वीरीरितम कल्मषाः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा भगवान का गुणगान गाते हुए रहते हैं। श्रवण मंगलम, ये बहुत मंगल वेरी ऑस्पिशियस, मंगल प्रदायक श्रवण है। हमारा जीवन को मंगलमय बनाना है तो हमेशा भागवत का श्रवण करना है। भागवतम जो है शुभधाम, जब हम भक्ति कार्य करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व जो है वो शुद्ध हो जाता है, वो शुभ प्राय होता है। उसको भी बोलते हैं शुभदा। शुभदा क्लेशा, सो सब क्लेश भी नष्ट हो जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो माया का ये जो तापत्रय है, वो जो दंड है, उससे बचने के लिए भगवान का
शरण लेते हैं। भगवान का शरण लेने में क्या फायदा है वो भगवान गीता में ही बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये दैवी शक्ति जो है माया एक गुणमयी है, एक 3 गुणों से जीवों को बद्धावस्था में रखती है। लेकिन जब हम भगवान को पूर्ण तरीका से शरण लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति मतलब भगवान का शरण लेना। जब भगवान का पूर्ण रूप से हम शरण लेते हैं, मायामेतां तरन्ति ते, तब माया का दंड से हम बच सकते हैं। तो वही माया महामाया का रूप में दंड देती है, और वही माया जो सुभद्रा देवी के रूप में हमको शुभदा माने जीवन में सुभद्रा मतलब हमारा जीवन शुभमय बना देती है जब भगवान का हम शरण लेते हैं। तो ये जो चॉइस है हमारा ऊपर निर्भर है, किस प्रकार का रास्ता हम चुनेंगे और किस प्रकार का हम मार्ग चुनेंगे उसके ऊपर आधारित है। इसमें कोई फोर्स नहीं, भगवान भी फोर्स नहीं करते कि आओ मेरा शरण लो। भगवान इस धरातल पे अवतरित होते हैं उनको एक अवसर प्रदान करने के लिए, और उसमें कोई दबाव नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं है। भगवान सब गीता कहने के बाद अर्जुन से बताया कि यथा इच्छसि तत्कुरु, मैंने अभी आपको पूरा ज्ञान आपने दिया, अब आपको जो चाहिए वो कीजिए। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति थे, बुद्धिशाली थे। उन्होंने बताया कि करिष्ये वचनं तव, हे कृष्ण आप जो बोलते हैं वो मैं करूँगा। तो यही शरणागत जो भक्त है भगवान का आदेश को पालन करते हुए अपना जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की। हरि गौर प्रेमानंद।